Okay, let us start. So our topic for today's lecture is going to be types of molecular vibrations. आप लोग ने लास्ट क्लास में मुझे पूछा था कि सर व्हाट आर द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। जब भी हम बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, हमारा जो यूनिट 1 है इसमें हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिया है। उसके हमने सिलेक्शन रूल्स पढ़ लिए हैं, एनर्जी स्टेट्स पढ़ लिया है, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं types of molecular vibrations. You know that when we study about the vibrational spectroscopy, we have to study about the vibrations, types of vibrations or the molecular vibrations in a molecule. Today, we are going to talk about a triatomic molecule. A triatomic molecule will have 3 atoms. Triatomic molecule will have 3 atoms. Okay, and these 3 atoms are arranged in a bend shape, or you can say they are the V-shaped structure. They are the V-shaped structure like this. Okay, there are 2 atoms, for example A and B, which are attached to a central atom, which is suppose C. So we are going to talk of the triatomic molecules, and in this triatomic molecule we are going to talk of the types of molecular vibrations. Types of molecular vibrations, we are basically considering 2 types. First one is the stretching vibration and the second one is the bending vibration. Now let us talk of what do you mean by stretching vibrations and bending vibrations. Whenever I talk of stretching vibrations, in stretching vibrations, please remember that there will be change in bond length. Note it down, change in bond length. Note down, in stretching vibration, there will be change in bond length. Whereas in case of bending vibration, there will be change in bond angle. I'm repeating, in stretching vibration, there will be changes in the bond length which will be observed, okay, with respect to a triatomic molecule. And in case of bending vibration, there will be change in the bond angle. Okay, now when we talk of particularly the stretching vibration, जब हम stretching vibration की बात करते हैं, जहां पर क्या चेंज हो रहा है, stretching vibration में क्या चेंज हो रहा है, bond length. तो अब हम देखेंगे कि stretching vibration कैसे होता है और उसके प्रकार क्या है, ठीक है। तो stretching vibration जिसमें bond length चेंज होता है, उसके 2 प्रकार हैं, stretching vibrations which are symmetric and stretching vibrations which are asymmetric, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मैं बोर्ड को थोड़ा टिल्ट कर रहा हूं, इस तरफ देखेंगे अपने, ठीक है। यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ओके, ध्यान देंगे 2 फिगर्स जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये है सेंट्रल एटम C एंड दीस आर द 2 एटम्स A एंड B, A B, ठीक है। वैसे ही हम लोग एसिमेट्रिक में भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस डायग्राम का मीनिंग आप लोगों को समझ में आना चाहिए। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो कि सिमेट्रिक है, उसमें A और B के रिस्पेक्ट में, A और B के रिस्पेक्ट में या तो बॉन्ड लेंथ दोनों में इंक्रीज होगा या तो बॉन्ड लेंथ दोनों में डिक्रीज होगा। मतलब A और B C के रिस्पेक्ट में दोनों ही का बॉन्ड लेंथ सेंट्रल एटम से या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। जो भी प्रोसेस होगा A और B के रिस्पेक्ट में वो सेम होगा। मतलब AC का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो BC का भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, AC का बॉन्ड लेंथ अगर घटेगा तो BC का भी बॉन्ड लेंथ घटेगा। इस टाइप के स्ट्रेचिंग को बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। मतलब बॉन्ड लेंथ या तो एक साथ बढ़ेगा या तो बॉन्ड लेंथ एक साथ कम। I'm repeating, in case of symmetric vibrations, the bond length with respect to central atom either increases like this or it will decrease like this. But both the process will occur simultaneously. It is not like कि one bond length will increase and the other bond length will decrease. दोनों ही बॉन्ड लेंथ एट दैट टाइम इंक्रीज होंगे, एट दैट टाइम डिक्रीज। इस टाइप के वाइब्रेशंस को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्लियर है क्या? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्लियर है? यस सर। गुड, Yes, sir. नेक्स्ट लेट अस कम टू एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस। विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम C, AC का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा, BC का जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगा। एरो का डायरेक्शन देखिए, एरो का डायरेक्शन देखिए सेकंड फिगर में। AC का जो बॉन्ड लेंथ है वो मैं बाहर की ओर एरो ड्रॉ किया हूं। बाहर की ओर एरो ड्रॉ करना मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। एंड BC का बॉन्ड लेंथ
Decrease. Increase. डिक्रीज। इट मींस दैट AC इज Decrease. स्ट्रेचिंग। AC का जो बॉन्ड लेंथ है वो स्ट्रेच हो रहा है, मतलब वो फैल रहा है। Decrease. BC का जो बॉन्ड लेंथ है वो Decrease. कंप्रेस हो रहा है। BC का बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, मींस द बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजिंग। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. So, Yes, sir. in case of asymmetric vibration, one bond length with respect to the central atom C will increase and the other bond length with respect to the central atom will decrease. ये ऐसा भी हो सकता है कि AC का bond length decrease हो तो BC का bond length क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी टाइप के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में only one property of bond changes and that is bond length। यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, चाहे बॉन्ड स्ट्रेच करे चाहे बॉन्ड कंप्रेस करे। जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ACB। यहाँ पर भी जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ACB बॉन्ड एंगल। इट विल नॉट चेंज, द बॉन्ड एंगल विल नॉट चेंज, ओनली व्हाट विल चेंज? द बॉन्ड लेंथ। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in case of symmetric stretching vibration, the bond length either increases or decreases with respect to both the bonds simultaneously. और asymmetric vibration में क्या होगा? अगर एक bond length increase होगा तो दूसरा bond length compulsory decrease होगा, इसलिए इसको बोलते हैं asymmetric stretching। कौन सी property of bond is changing continuously? The bond length, but there is no change with respect to bond angle. Clear? Is it clear up to here? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, stretching sir. vibration we have completed. Now let us come to the bending type of vibration. Let us come to the bending type of vibration. Okay, let us understand the bending type of vibration. In bending type of vibration, first I will be explaining you scissoring type of bending stretching. Okay, scissoring type of bending. Okay, in case of scissoring type of bending, what do you mean by scissor? Scissor का मतलब क्या है? Scissor का मतलब है कैंची। सबको पता है ना, scissor का मतलब क्या है? कैंची। Now let us see our bond length and the bond properties which are changing. Look here, this is my central atom C, this is my atom A, this is my atom B. What is happening in scissoring? मैं इसको ऐसे समझाता हूं। ये एक आप लोग ले लीजिए ABC ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिसरिंग में क्या होता है? जब कैंची के दोनों छोर एक साथ आते हैं तभी वो पेपर को कट करते हैं। ये बात मानते हो? ठीक है, तो सिसरिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? इधर ध्यान देंगे, जो AC और BC जो बॉन्ड लेंथ है वो या तो इंक्रीज अपना बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा या तो वो अपना बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। एंगल डिक्रीज, एंगल इंक्रीज, एंगल डिक्रीज, एंगल इंक्रीज। मतलब जब दोनों कैंची के दोनों छोर आपस में एक साथ आएंगे तभी वो किसी चीज को या पेपर को कट कर पाएंगे। जैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, मतलब वो पेपर को कट नहीं कर पाएंगे। मतलब दोनों छोर आपस में एक साथ आए या आपस में अपने एक दूसरे से दूर जाएं, इस टाइप का जो वाइब्रेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेंडिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। इसको बेंडिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल लगातार चेंज हो रहा है। जैसे ही कैंची के दोनों छोर आपस में एक साथ आए, सिसरिंग हुआ, सिसरिंग दूर, जो दोनों छोर है वो दूर गए। ये है किस टाइप का वाइब्रेशन? किस टाइप का वाइब्रेशन? सिसरिंग। ऐसा कोई दिक्कत? सिसरिंग मतलब दोनों छोर कैंची के एक साथ आए, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ, दोनों छोर दूर गए, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ। क्या यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? No, sir. No. Only which property is changing? It is only changing the bond angle. It is the bond angle which is increasing. It is the bond angle which is decreasing. इस टाइप के वाइब्रेशंस को हम बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A पास आया, B पास आया, तो मतलब एरो कैसे मैंने बनाया? इनवर्स। मैंने B का एरो कैसे बनाया है? इनवर्स। कोई दिक्कत? या A दूर गया, B दूर गया, कोई दिक्कत? एरो का डायरेक्शन समझ में आ रहा है? दोनों को या तो आपस में मिलना है या तो दोनों को एक दूसरे से दूर जाना। ऐसी चलती है ना कैंची, ऐसे 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 कैंची चलती है ना, ये वैसे इस टाइप की वाइब्रेशन Sir, inward, outward.
टाइप ऑफ वाइब्रेशन। और कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है बट बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। क्लियर है? सिस्टरिंग क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ काम था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज रॉकिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। लेट अस अंडरस्टैंड द रॉकिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, ए बताइए। सी, रॉकिंग। देखो ध्यान से देखो, मेरा हाथ देखना। ये रॉकिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन, ये है बॉन्ड एंगल, एक साथ इधर, एक साथ इधर, एक साथ इधर, एक साथ इधर, ये ऐसे नाच रहे हैं। जैसे आप लोग रॉक द स्टेज करते हो ना, ये ऐसे। सिसरिंग में कैसे होता था? ऐसे। ये सिसरिंग है, ठीक है। रॉकिंग में क्या है, यहां पर बॉन्ड एंगल लगातार चेंज हो सकता है। ये है रॉकिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. रॉकिंग समझने में कोई दिक्कत? मैं रॉकिंग को कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? ए लेफ्ट की ओर, बी भी लेफ्ट की ओर, ए राइट की ओर, बी भी राइट की ओर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, यहां sir. तक समझने में कोई दिक्कत? No, sir. ध्यान देना, सिसरिंग और रॉकिंग में क्या डिफरेंस है? सिसरिंग में दोनों एरो में एक तरफ बनाता था, या फिर दोनों तरफ जो एरोज है वो बाहर की ओर बनाता था। एरो दिख रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. और जस्ट अपोजिट रॉकिंग में क्या कर रहा हूं, दोनों एरो एक तरफ राइट की ओर, या फिर दोनों एरो लेफ्ट की तरफ। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत समझने में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन? No, sir. No, sir. नहीं सर। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सिसरिंग और रॉकिंग? Yes, sir. ओके, ध्यान देना स्टूडेंट्स, Sir, यहां पर एक example- नया मैं बताने जा रहा हूं। सिसरिंग एंड रॉकिंग दोनों ही किस टाइप की स्ट्रेचिंग है? इन प्लेन स्ट्रेचिंग। इन प्लेन स्ट्रेचिंग मतलब, इन प्लेन स्ट्रेचिंग का मतलब समझिए। इन प्लेन स्ट्रेचिंग का मतलब समझो, ध्यान से देखो। ये बॉन्ड एंगल दिख रहा है, सिसरिंग में ऐसा होता था, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है। ये कहां हो रहा है? एक प्लेन में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन में हो रहा है। ये जो मेरा जॉइंट है, दोनों हाथों को मैं जहां पर जॉइंट कर रहा हूं वो सी है, और ये ए है, ये बी है। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये एक ही प्लेन में हो रहे हैं। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ये जैसे है आप लोग का, मैं अगर सिसरिंग दिखा रहा हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा, 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 ऐसा। ये कहां हो रहा है? ये एक ही प्लेन में हो रहा है, सिसरिंग। और रॉकिंग कैसा है? या तो राइट या तो लेफ्ट। ये भी कहां हो रहा है? एक ही प्लेन में हो रहा है। अगर ये प्लेन मेरा बोर्ड का प्लेन है, तो सिसरिंग देखो, ध्यान से देखो, सिसरिंग, ये मेरा बोर्ड का प्लेन में सिसरिंग देखो, मेरा हाथ का मूवमेंट दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा सिसरिंग। और अगर रॉकिंग की बात करें, तो दोनों बॉन्ड एंगल एक तरफ राइट में, एक साथ लेफ्ट, एक तरफ राइट में, एक तरफ लेफ्ट। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? No, sir. रॉकिंग और No, सिसरिंग sir. इन प्लेन टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं। अब हम लोग बात करते हैं बचे हुए दो टाइप्स की, जो कि हैं वैगिंग और ट्विस्टिंग। वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं वैगिंग, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्विस्टिंग, ठीक है। थोड़ा इसको समझना डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं बोर्ड की हेल्प ले रहा हूं और डायग्राम की हेल्प ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो दोनों में कॉमन फीचर क्या है कि दोनों ही आउट ऑफ
आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। नोट कर लीजिएगा, जो हमारा सिसरिंग और रॉकिंग था वो इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस थे। जो वैगिंग और ट्विस्टिंग है ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं। नोट कर लिए? अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये आउट ऑफ प्लेन है मतलब क्या है? आउट ऑफ प्लेन है मतलब ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पेन की मदद से। मुझे पेन लेना पड़ेगा, तो 2 मिनट वेट करिए। आप लोग को मेरा 2 पेन नजर आ रहे हैं? Yes, sir. ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 2 पेन है मेरे, ठीक है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं इन पेन की मदद से आप लोग को वैगिंग और ट्विस्टिंग। ये आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस है मतलब 2 एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। वैगिंग में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मेरा प्लेन अभी ये वाला है। जैसे ही ये वैग करेंगे तो दोनों ब्लैक और ब्लू पेन आपकी ओर आ रहे हैं, मतलब इनका प्लेन लगातार चेंज हुआ, कोई दिक्कत? आपकी ओर बेंड हुए, फिर अपने मीन पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर जो दोनों पेन है वो मेरी तरफ आ गए। मतलब वैगिंग में लगातार जो बॉन्ड जो प्लेन है वो लगातार चेंज हो रहा है। ये पेन्स अपनी मीन पोजीशन पे हैं, ये पेन्स आपकी ओर डायरेक्ट कर रहे हैं, ये पेन्स मीन पोजीशन पे हैं, ये पेन्स मेरी ओर डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं इनको बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, आप लोग को आंसर शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब बोर्ड देखिएगा, बोर्ड देखिएगा। अगर ये 2 एटम्स ए और बी आपके पास आ रहे हैं तो इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस साइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस साइन। मतलब ये जो 2 पेन्स थे या 2 एटम्स जो हैं ए और बी, ये आपके पास आ रहे हैं लाइक दिस। सो इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस साइन। और अगर ये 2 एटम्स ए और बी आपसे दूर जा रहे हैं तो उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समझने में दिक्कत? No, sir. नो सर। इसको वैल्यू को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? माइनस। तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा? माइनस। मतलब ए और बी आपसे दूर जा रहा है। इस टाइप के वाइब्रेशंस का नाम क्या है? वैगिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। वैगिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? ट्विस्टिंग। इसका अपोजिट हो जाएगा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एटम ए बी, एटम ए बी, ए जो है वो आपके पास आ रहा है, बी आपसे दूर जा रहा है। तो मतलब बी जो दूर जा रहा है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस। वैसे ही अगर ए आपसे दूर जा रहा है तो ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस साइन। और बी अगर आपके पास आ रहा है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव। इस टाइप के बेंडिंग वाइब्रेशन को बोलते हैं ट्विस्टिंग टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस। इसको मैं पेन से कैसे समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको पेन से समझाने की कोशिश करता हूं। पेन दिख रहा है स्टूडेंट्स मेरा? स्टूडेंट्स मेरा पेन दिख रहा है? यस सर। ओके, देखो ध्यान से, अब आप लोग नाम बताएंगे। अगर ब्लैक पेन और ब्लू पेन आपके पास आ रहा है तो इसको कौन सा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? वैगिंग। प्लस प्लस साइन से। अगर दोनों ही प्लस है, दोनों ही प्लस है, तो ये वैगिंग हुआ कि ट्विस्टिंग हुआ? वैगिंग। वेरी गुड। और दोनों ही अगर माइनस है तो ये वैगिंग हुआ कि ट्विस्टिंग हुआ? वैगिंग। वैगिंग। वेरी गुड, अभी भी ये वैगिंग ही है। और अगर ब्लू आपके पास आ रहा है और ब्लैक मेरे पास आ रहा है तो ये वैगिंग रहा कि ट्विस्टिंग रहा? ट्विस्टिंग। देखो ये पेन पहले ऐसे था, जैसे ही ब्लू आपके पास गया और ब्लैक मेरे पास आया तो ये पेन ट्विस्ट हुआ ना। इस टाइप की वाइब्रेशंस को बोलते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। और ब्लैक अगर आपके पास आया और ब्लू मेरे पास आया तो ये भी प्लस माइनस हुआ। ये भी किस टाइप का वाइब्रेशन हुआ? ट्विस्टिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां पर? No, sir. मैं फिर से No. पेन की मदद से आप लोग को पूरे 6 वाइब्रेशंस एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग को पेन की मदद से अब मैं पूरे 6 वाइब्रेशंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बताइए, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस 2 तरीके कौन कौन से हैं? स्ट्रेचिंग। नो, मेजर टाइप्स Stretching and bending. stretching and bending. Very good, Shivani. Okay, what are the 2 types of stretching vibrations?
Symmetric and asymmetric. Symmetric and asymmetric. What are the four types of bending vibrations? Scissoring, rocking, wagging, and twisting. Very good, Neha. Scissoring, twisting, wagging, and rocking. Let us explain this with respect to pens. प्लीज स्टूडेंट, अगर आप लोग ये पेन से डेमोन्स्ट्रेशन समझ जाते हैं, मतलब आप लोग के लिए ये बहुत इजी है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सबसे पहले सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, देखो देखो ध्यान से। ऊपर वाला जो पेन का मीटिंग पॉइंट है, इसको आप लोग ऊपर से नहीं देखेंगे। ठीक है, देखो अभी बॉन्ड लेंथ ऐसा है। जैसे ही मैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करूं तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में या तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा या तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा या तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। ये कौन सा टाइप का स्ट्रेचिंग है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ब्लू का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ और ब्लैक का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ, ये कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। ब्लैक का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ, ब्लू का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ, ये किस टाइप का स्ट्रेचिंग है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। कोई दिक्कत? ये दोनों समझने में कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं बेंडिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। बेंडिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सिसरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। सिसरिंग, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ, ये क्या है? सिसरिंग, जैसे कैंची चलती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, वैगिंग, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये होगा आपका वैगिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी रॉकिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ओके, नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द वैगिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। वैगिंग में क्या होगा? प्लेन चेंज हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली प्लेन चेंज हो रहा है। ये आप लोग के पास गया, ये मेन पोजीशन पे आया, ये एटम्स मेरे पास आए, ए और बी आपके पास आए, मेन पोजीशन मेरे पास, ये क्या रहा? वैगिंग। नाउ ट्विस्टिंग में क्या होगा? ए आपके ब्लू पेन आपके पास गया, ए आपके पास गया, ब्लैक पेन अपने मेन पोजीशन पे रहा। ठीक है, लाइक दिस, ये ट्विस्ट हो रहा है ना पेन, ऐसे 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 करने से ट्विस्ट हो रहा है ना, ये रहा आपका ट्विस्टिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन। यहां पर भी जो प्लेन है वो लगातार चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत? चलो अब मैं पेन का डायरेक्शन मूव कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे ये क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, वैगिंग है, ट्विस्टिंग है, रॉकिंग है या सिसरिंग है। ठीक है, चलो डेमोन्स्ट्रेशन ध्यान से देखिए। एसिमेट्रिक। पहले तो बताएंगे सिमेट्रिक है तो क्या है, स्ट्रेचिंग है कि बेंडिंग है? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग है। बॉन्ड लेंथ तो बढ़ता घटता है कि बॉन्ड एंगल बढ़ता घटता है? बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। हाँ, रॉकिंग है। बेंडिंग है कि स्ट्रेचिंग है? बेंडिंग। बेंडिंग Bending है। बेंडिंग है। Bending। क्या चीज है? रॉकिंग। सर rocking। क्या चीज चेंज होता है इसमें लगातार? तो इसमें एंगल चेंज हो रहा है, लेंथ। बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग। ये क्या है? ट्विस्टिंग है। बेंडिंग है कि स्ट्रेचिंग है? Bending है। बेंडिंग है। और जो चीज आपके Bending पास है। आती है उसको कैसे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जो चीज आपसे दूर जा रही है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Negative से। नेगेटिव। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? Yes sir। Yes sir। अच्छा लगा ये वाला क्लास? अच्छा लगा? यस सर। ऐसा कौन Yes, टीचर sir. तुम लोग को पढ़ाता है? ऐसा कौन मेहनत करके तुम लोग को पढ़ाता है? बताओ। प्रतीक सर। अरे अभी तो वाह, कोई नहीं